Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. Today we will talk about the famous book Islam at the Crossroads by Muhammad Asad. This book has been recommended by Federal Public Service Commission for the paper of Islamiyat compulsory, Islamic Studies compulsory. और इस बुक का मैंने इंतखाब किया क्योंकि ये किताब जो है वो डेडिकेट की गई है टू द मुस्लिम यूथ। मेरे ख्याल में हर उस यूथ के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है, हर उस नौजवान के लिए, हर उस मुसलमान के लिए जिसका कोई ना कोई इंटरेक्शन वेस्ट के साथ रहता है। ये किताब इस मौजू के ऊपर है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो एक मुसलमान के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती है, ये उसको एक्सप्लेन करती है, और ये फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन भी देती है। इसके बाद इस किताब में इस्लामिक सिविलाइजेशन की रिवाइवल की रेसिपी मौजूद है। हम इन तमाम पे बात करेंगे। सबसे पहले इस किताब का मुख्तसर तारुफ। ये दिल्ली में पब्लिश हुई, दिल्ली और लाहौर में 1934 में। It throws light on the subject that Muslims should avoid the blind imitation of the Western civilization, and they should rather appreciate and preserve their own golden heritage, which once upon a time founded the great Muslim civilization. आखिर ये बात कहता है कि आपने वेस्ट को इमिटेट नहीं करना। हाँ, उनकी अच्छी चीज़ें ज़रूर लें, वो कौन सी चीज़ें लेनी है वो भी आगे जिक्र आएगा उनका, लेकिन क्या करना है, आपने इस्लाम के लिए अपोलोजेटिक नहीं होना। You should be proud of the fact that you are a Muslim. This book is dedicated to the Muslim youth. They are advised by the author not to be impressed by the Western civilization. The writer wrote in the foreword of the book, "This little book is a humble contribution towards the great goal. It does not pretend to be a dispassionate survey of affairs. It is the statement of a case, as I see it, the case of Islam versus Western civilization." इस किताब का मुख्तसर तारुफ और इस किताब का जो इसके पेश लफ्ज़ में लिखा, ये एक मैंने कॉपी किया है, छोटा सा पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। इनिशियल नेम, जो इसका असल नेम था, लेपोल्ड वेस। 2 जुलाई 1990 को पैदा हुए और 20 फरवरी 1992 को ये अपने खाले के हकीकी से जा मिले। जूइश बोर्न, ऑस्ट्रो हंगरियन, जर्नलिस्ट, ट्रैवलर, राइटर, लिंग्विस्ट, थिंकर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, डिप्लोमेट एंड इस्लामिक स्कॉलर। शुरू में ये जू थे, लेकिन बाद में 1926 में ये कन्वर्ट हुए। लिहाजा ये सवाल अक्सर इनसे किया जाता रहा कि आप पढ़े लिखे यहूदी हैं, यहूदी थे, तो आखिर किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया और आप इस्लाम के दायरा में दाखिल हुए? इस सवाल का जो जवाब है, ये इसकी अक्सर राइटिंग्स में नज़र आता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूरोपियन मुस्लिम्स ऑफ द 20th century, he received Pakistan's citizenship and served as Pakistan's envoy to the United Nations, described by the biographers as Europe's gift to Islam and a mediator between Islam and the West. इसकी जो सवाने उमरी लिखने वालों ने इसको यूरोप का इस्लाम के लिए गिफ्ट कहा है, and he was also called as a mediator between Islam and the West. इसकी कुछ और जो किताबें हैं, his translation and explanation of the Holy Quran in English, the message of the Quran, the message of the Quran, is one of the most notable of his works. Autobiography, The Road to Makkah, इसकी ऑटोबायोग्राफी है। इस्लाम एट द क्रॉस रोड इसकी किताब है, जिसका मैं आज इसका मुख्तसर जो समरी है वो पेश करूंगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इस्लाम।
अच्छा, मुसन्निफ इस किताब के पेश लाफ्स में एक बात करता है, he has been asked this question time and again as to why he embraced Islam. इसका जवाब देते हुए वो लिखता है, it was not only it was not any particular teaching that attracted me, but the whole wonderful, inexplicably coherent structure of moral teaching and practical life program. I could not say even now which aspect of it appeals to me more than any other. Islam appears to me like a perfect work of architecture. All its parts, all its parts are harmoniously conceived to complement and support each other. Nothing is superfluous, nothing lacking, with the result of an absolute balance and solid composure. Probably this feeling that everything in the teachings and postulates of Islam is in its proper place has created the strongest impression on me. तो वो ये कहता है कि कोई ख़ास ऐसी तालीम नहीं थी जिसने मुझे मुतासिर किया हो, लेकिन मैं किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता जो पूरा सिस्टम है एज़ ए होल पैकेज जो इस्लाम है, वो सारा का सारा इतना उसके अंदर कोहेरेंस है, इतना उसके अंदर कनेक्टिविटी है, इतना वो कंप्लीट है कि उसने मुझे मुतासिर किया। अलबत्ता किसी ख़ास एक टीचिंग की वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि मुतासिर हुआ हूँ, बल्कि ये पूरा पैकेज ही शानदार है और उसी से मैं मुतासिर हुआ हूँ। वो लिखता है, अच्छा जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएँगे, इसका मतलब ये है कि ये मैंने हूबहू कॉपी किया है। और जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएँगे, वो मैंने उसको पैराफ्रेज़ करके अपने वर्ड्स में लिखा है, लेकिन मफ़हूम उसका वही होगा। तो ये चूँकि इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इसलिए ये हूबहू मैंने कॉपी किया है, सेम कॉपी पेस्ट है वहाँ से ही। Islam as a spiritual and social phenomenon is still, in spite of all the drawbacks caused by the deficiencies of the Muslims, by far the greatest driving force mankind has ever experienced. इस थोड़ा सही कर लें आखिर में, mankind has ever experienced, आखिर में एक्सपीरियंस के डी आएगा। अच्छा, तो इस किताब का अक्सर जगहों पे ये ज़िक्र करता है ऑथर कि इस्लाम का फ़ॉल्ट कोई नहीं है, मुसलमानों के अंदर फ़ॉल्ट थे, तो मुसलमानों के जो फ़ॉल्ट्स हैं, उन्होंने ही इस्लामिक जो वर्ल्ड है, उसी का डिके में अहम किरदार अदा किया, उसी का डिके जो है वो हुआ। इस्लाम के सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अच्छा, इस्लाम वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन, यहाँ पे ऑथर ये कहता है, इट लाइज इन ह्यूमन नेचर दैट नेशंस एंड सिविलाइजेशंस व्हिच आर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मोर विराइल exert a strong fascination on the weaker or less active communities and influence them in the intellectual and social spheres without being influenced themselves. Such is the situation today with regard to the with regard to the relations between the Western and the Muslim worlds. आथर ये कहता है कि ये इंसानी फितरत है कि जो तहजीबें या कौमें ताकतवर होती हैं, वो अपना इम्पैक्ट कमज़ोर तहजीबों और कमज़ोर कौमों पे डालती हैं। और यही हुआ है कि चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो कमज़ोर है बिकॉज़ ऑफ द डिफिशिएंसीज़ ऑफ द मुस्लिम्स, तो उनके ऊपर ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अपनी छाप छोड़ दी है। अच्छा, यहाँ पे आगे जाके वो एक बात करता है इस्लाम की खूबसूरती की। द रिलीजियस मैन नोज दैट व्हाटएवर हैपेंस टू हिम एंड विदिन हिम कैन नेवर बी द रिजल्ट ऑफ अ ब्लाइंड प्ले ऑफ फोर्सेस विदाउट कॉन्शियसनेस एंड पर्पस। He believes it to be the outcome of God's conscious will alone and therefore organically integrated with the universal plan. In this way, man is enabled to solve the bitter antagonism between the human self and the objective world of facts and appearances, which is called nature. ये चूंकि इन्वर्टेड कामाज में है, तो ये भी मैंने हूबहू और ये फ्रेजेस कॉपी किए हैं। इसमें वो ये कहता है, बेसिकली इसका इशारा होता है अकीदा तौहीद की तरफ, जो इस्लाम का अकीदा है उसकी तरफ इसका इशारा है कि जो मजहबी इंसान है, उसके खिलाफ अगर कुछ हो भी जाता है, अगर समथिंग बैड हैपन्स टू हिम, तो ये समझता है
कि ये अल्लाह ताला की मर्जी ऐसी थी, उस पर सब्र करता है और वो नेचर के खिलाफ नहीं होता। तो अगर अच्छा होता है तो उस पे भी वो शुक्र करता है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला के ये जो यूनिवर्सल प्लान है उसका ये हिस्सा है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये बगैर किसी वजह के नहीं हो रहा, बगैर किसी मकसद के नहीं हो रहा। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, और अगर इफ समथिंग बैड हैपन्स तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है, और इसमें से भी कोई ना कोई अच्छा पॉइंट जो है वो निकलेगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। फिर इस्लाम की वो बात करता है, द राइटर मेक्स द पॉइंट दैट इन इस्लाम ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिनाउंस द मटेरियल वर्ल्ड, no austerities are required for spiritual purification, and no pressure is exerted upon the mind to believe in incomprehensible dogmas for the purpose of securing salvation. These concepts are foreign to Islam, as it is not a mystical philosophy, rather it is a program of life according to the rules of nature. Islam reconciles the spiritual and material aspects of human life in its teachings. तो जो खूबसूरत बात है इस्लाम में वो ये है कि इस्लाम के अंदर स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल एस्पेक्ट दोनों इकट्ठे ही हैं। मतलब दुनिया की बाकी रिलीजियस सिस्टम ऐसे हैं जो कि किसी हद तक आपको दुनियादारी से दूर करते हैं। इस्लाम वो वाहिद सिस्टम है जो आपको दुनियादारी से दूर नहीं करता। आपकी जो मटेरियल वेलबीइंग है उससे भी आपको दूर नहीं करता। और आप इस्लाम चूंकि रिलीजन ऑफ रीजन है, कोई ऐसी बात भी नहीं आपसे कहता जो आपकी समझ में ना आए, जो लॉजिक से हटके हो। कोई गैर इंसानी गैर फितरी बात का हुक्म नहीं देता। कोई ऐसी इस्लाम के अहकामात नहीं है जो कि इंसान की इज़्ज़त के मुनाफी हों, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हों। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान की डिग्निटी के हक में हैं, उसकी फेवर में है। और स्पिरिचुअल वेलबीइंग और उसकी मटेरियल वेलबीइंग जो है दोनों वो इकट्ठी करता है। इस्लाम डजंट instruct to abandon the material world. The writer states that Islam alone declares that individual perfection is possible in our earthly existence. Islam asserts that man can reach in the earthly individual life, making full use of all the worldly possibilities of his life. Christian teachings postpones this fulfillment until after a suppression of the so-called worldly desires. Hinduism promises a continuous chain of rebirths on a progressively higher plane. In Buddhism, the individual self and its emotional links with the world should be inherited. अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि इस्लाम अकेला ही एक ऐसा रिलीजियस सिस्टम है जो कहता है कि इंसान अपनी दुनिया में अपनी दुनियावी कामयाबी की पीक पे पहुंच सकता है और मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। वो तारे के दुनिया होने का पैगाम नहीं देता कि आप दुनिया छोड़ जाएं। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है कि ये तब होगा जब आप अपनी इंसानी जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उनको सप्रेस करेंगे। जो इस्लाम में ऐसा केस नहीं। इस्लाम नेचुरल जो आपकी डिज़ायर्स हैं आप उनको जायज़ तरीकों से पूरा कर सकते हैं। हिंदुइज्म में क्या है कि रीबर्थ होते 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 आप हायर स्टेज पे जाते हैं। इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि आप एक ही लाइफ में सारा कुछ हासिल कर सकते हैं थ्रू फेयर मीन्स, और इतनी पॉसिबिलिटीज दी हैं, आप हासिल करें, आप कामयाब हों, दुनियावी तौर पे कामयाब हों। इस्लाम बिल्कुल इसको इनकरेज करता है। और आखिरत की कामयाबी का भी इस्लाम में जिक्र है कि आप इस दुनिया को भी और आखिरत की दुनिया, दोनों दुनिया की कामयाबियों को ज़हन में रखें। बुद्धिज्म में ये है कि इंडिविजुअल सेल्फ एंड द इमोशनल लिंक्स विद द वर्ल्ड शुड बी एनिहिलेटेड। तो ये इस्लाम का एक छोटा सा कंपैरिजन है विद अदर सिस्टम्स। Islam applies upon and allows a diverse variety of lifestyles. Therefore, Islam, which is not religion of repression, allows to man a very wide margin in his personal and social existence, so that the various qualities, temperaments, and psychological inclination of different individuals should find their way to positive development according to their individual
predisposition. Thus, a man may be an ascetic, or he may enjoy the full measure of his sensual possibilities within the lawful limits. He may be a nomad, roaming through the deserts without food for tomorrow, or a rich merchant surrounded by his goods. As long as he sincerely and consciously submits to the laws decreed by God, he is free to shape his personal life to whatever form his nature directs him. बहुत खूबसूरत बात की है कि इस्लाम जो है वो आपको दुनियावी तरक्की से नहीं रोकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के लिए ये इक्वली वैलिड है। हो सकता है आप चरवाहे हों और आपके पास खाने के लिए बहुत महदूद मकदार हो खाने की, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ज़रूरी है आपके लिए फॉलो करना। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपके लिए भी यही है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आपने 5 टाइम नमाज के लिए जाना है 20 मिनटों के लिए मस्जिद में। उसके बाद आप दुनियावी मामलात में फ्री हैं। आप सुबह, आजकल मसलन सुबह की नमाज 6:20 पे होती है जमात के साथ, तो आप 6:40 पे फारिग हैं। उसके बाद आप दोपहर 1:30 बजे तक आप फ्री हैं और आप दुनिया के मामलात चलाएं, अपना लाइफस्टाइल जो भी है फॉलो करें। जायज़ तरीके से आप अपनी तमाम ख्वाहिशात, तमाम दुनियावी ज़िंदगी की तमाम मामलात में चल सकते हैं। इस्लाम इससे आपको नहीं रोकता, सिर्फ आपको डिसिप्लिन करता है कि आपका थिंकिंग पैटर्न ये होना चाहिए और आपने ये एक्शंस करने हैं। Islamic concept of man's original nature. Contrary to the Christian idea that man is born sinful, are the teachings of Hinduism that he is originally low and impure and must painfully stagger through a long chain of transmigrations toward the ultimate goal of perfection. Islamic teachings contend that man is born pure and, in the sense explained above, potentially perfect. अच्छा, ईसाईयत ये कहती है कि इंसान पैदा ही गुनाहगार हुआ है, और हिंदुइज्म ये कहती है कि इंसान जो है वो ओरिजिनली बहुत लो है। इसका स्टेटस रीबर्थ के ज़रिए, बार-बार रीबर्थ के ज़रिए इसका स्टेटस अप होता है। जबकि इंसान का कंसेप्ट बड़ा डिफरेंट है। इस्लाम का कंसेप्ट ये कहता है, इस्लाम, कि इंसान जो है वो पैदा बेगुनाह होता है, प्योर है, खालिस पैदा होता है और वो पोटेंशियली परफेक्ट है। It is the disbelief in God and lack of good actions which may destroy his original perfection. हाँ, बाद में जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो उस वक्त अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता और अच्छे अमाल नहीं करता तो उसकी ओरिजिनल परफेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। Surely we created man in the best structure. सूरह अतीन आयत नंबर 4 कि इंसान को हमने बेहतरीन पैदा किया है। In Islam, the earthly life and spiritual orientation are not mutually exclusive. ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। Of all religions, Islam alone makes it possible for man to enjoy the full range of his earthly life without for a moment losing its spiritual orientation. इन्वर्टेड कॉमास में है, लिहाजा आप इसको वैसे ही कोट करेंगे, कोट एंड कोट है कि आप इस्लाम में दुनियावी ज़िंदगी और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन दोनों इकट्ठी साथ साथ चल सकती हैं। The writer says that the Christian world stumbles under the concept of hereditary sin committed by Hazrat Adam alayhi salam and Eve, and consequently the whole is looked upon as a gloomy tale of sorrows. जो ईसाईयत का तस्वर है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा ने जो गुनाह किया था, बेसिकली उसकी सज़ा इंसान को दी गई है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये इटसेल्फ जो है वो बड़ा डैमेजिंग है इंसानियत के लिए। इस्लाम में फिर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो ये कहती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हिसाब और सबकी निजात का ज़रिया बनेंगे और everyone is responsible for his own actions. Child is not responsible for the sins committed by his father and forefathers. तो ईसाईयत ये भी कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की सज़ा इंसान को मिल रही है। ये मोहम्मद असद ने कहा है अपनी किताब में और ये उसकी कोटेशन है।
सूरह अल बकरा आयत नंबर 286, it will have the consequences of what good it has gained and it will bear the consequence of what evil it has earned. इस्लाम ये कहता है हर बंदा अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। अपने बाप के जिम्मेदार के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता, भाई भाई के गुनाहों का जिम्मेदार नहीं है, हर बंदे ने अपने हिसाब खुद देना है। तो ईसाइयत का जो कंसेप्ट है हेरिडिटरी सिन वाला, इस्लाम का कंसेप्ट डिफरेंट है। और फिर सूरह अन-नजम आयत नंबर 39, एंड दैट ईच पर्सन विल ओनली हैव व्हाट दे एंडीवर टुवर्ड्स, कि हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। अच्छा, इस्लाम का जो कंसेप्ट है अर्थली लाइफ का, दुनियावी जिंदगी का क्या है? इस्लाम व्यू पॉइंट इज बैलेंस्ड, नाइदर इट शेयर the gloomy aspect of life as expressed in Christianity, nor it attributes to earthly life that exaggerated value which modern Western civilization attributes to it. The modern West adores life in exactly the same way as the glutton adores his food, with no respect for it. Islam does not worship earthly life. Islam looks upon it with calm and respect and regards it as an organic stage on our way to a higher existence. Islam neither underrates nor overrates it. बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है इस्लाम का दुनियावी जिंदगी के बारे में। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि थोड़ा ग्लोमी व्यू लेती है इस जिंदगी का। वो कहती है कि ये तो हमें गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये कहती है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, उसको ओवररेट कर रही है। इस्लाम ये कहता है, इसको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि इस्लाम का कंसेप्ट यही है कि इसी की बुनियाद पे ही तो आखिरत का कंसेप्ट बनना है, इसी की बुनियाद पे ही तो आखिरत में सजा और जजा होगी। तो लिहाजा इस्लाम ट्रीट्स इट विद रिस्पेक्ट एंड काम। इस्लाम हमें सिखाता है कुरान में, सूरह बकरा आयत नंबर 201, आवर लॉर्ड गिव अस द गुड इन दिस वर्ल्ड एंड द गुड इन द हियरआफ्टर। हमें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी कामयाबी दे, हमें इस जहान की भलाई भी दे और अगले जहान की भलाई भी दे। ये इंसान को दुआ सिखाई गई है। मतलब दुनियावी जिंदगी की भी अहमियत है, इसकी अहमियत से इनकार हमने नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया ना हो तो हम आखिरत की तैयारी कैसे कर पाएंगे? ये ऑर्गेनिक स्टेज है फॉर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज। Every individual Muslim has to regard himself as personally responsible for all happenings around him and to strive for the establishment of right and the abolition of wrong at every time and in every direction. अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये इन्वर्टेड कमाज में है, लिहाजा ये भी कापी है। सूरह आल इमरान 110, You are the best community that has been sent forth into mankind. You enjoin the right and forbid the wrong, and you have faith in God. तुम बेहतरीन उम्मत हो जो कि भेजी गई हो, तुम अच्छे कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। यहाँ पे आथर ये कंपैरिजन करता है रोमन एम्पायर वर्सेस इस्लामिक एम्पायर। It took the Roman Empire nearly 1,000 years to grow to its full geographic extent and political maturity, while the Islamic empires sprang up and grew to its fullness within short period of about 80 years.
रोमन एम्पायर को तकरीबन 1000 साल लगा अपनी पीक पे पहुंचने में, जबकि इस्लामिक एम्पायर को सिर्फ 80 साल लगे। जब रोमन एम्पायर को इस्लामिक एम्पायर के साथ कंपेयर करते हैं, तो रोमन एम्पायर को, जिसको 1000 साल लगा था अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंचने में, उसको उसके जवाल में सिर्फ 1 साल लगा, एक सदी लगी, 100 साल। यानी जो 1000 सालों में बिल्ड हुई, उसको खत्म होने में, जवाल आने में, डाउनफॉल में 100 साल लग गया। जबकि इस्लामिक एम्पायर जो है वो बहुत से डिफॉर्मेशन आई, बहुत सारी डायनेस्टिक चेंजेस आई, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन वही रही। तो इस पे उस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि कोई जवाल आया। 80 साल में जो इस्लामिक वर्ल्ड बनी वो आज तक कायम है, उसकी कमजोरियां अपनी जगह पे हैं। उन्हीं कमजोरियों के लिए हल जो है वो इसी किताब में तजवीज़ किया गया है। Even the attacks, particularly of the Mongols, were not able to shake the social organization and the unbroken political existence of the Islamic Empire. मंगोल भी इनको, इस्लामिक एम्पायर को, नुकसान उस तरीके से ना पहुंचा पाए कि उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते। In contrast with the 1 century which was needed to destroy the Roman Empire, the Islamic Empire of the collapse of the caliphs needed about a millennium of slow decay until its ultimate political breakdown, represented in the extension of the Ottoman Caliphate, became a fact, followed by the signs of social dissolution which we are witnessing at present. तो आखिर ये कहता है कि जो मुस्लिम कैलिफेट है उसको पॉलिटिकली ब्रेकडाउन होने में तकरीबन एक मिलेनियम लगा, और मुस्लिम वर्ल्ड तो अभी भी कायम है। इसकी वो कमजोरियां और वो चीजें हैं अपनी जगह पे। While in the Islamic Empire there was no privileged nation, and power was made subservient to the propagation of an idea regarded by its torch bearers as the sublime religious truth. The idea underlying the Roman Empire was conquest of power and the exploitation of other nations for the benefit of the mother country alone, to promote better living for a privileged group. No violence for the Romans was too bad, no injustice too base. एक और कंपैरिजन करता है इस्लामिक एम्पायर और रोमन एम्पायर का। इस्लामिक एम्पायर सारे बराबर थे और अल्लाह ताला के दीन की तबलीग के सामने पावर जो है वो सबसर्वेंट थी। लेकिन रोमन एम्पायर का जो आइडिया था वो डिफरेंट था। वो था कंकेस्ट ऑफ पावर और दीगर कौमों का इस्तेहसाल, ताकि उनका अपना जो मुल्क है उसकी भलाई के लिए वो काम करते थे। वो इंसानियत की भलाई के लिए नहीं थे, और उनके नज़दीक वायलेंस और इनजस्टिस भी अलाउड था, वो बैड नहीं था। फिर वो एक और कंपैरिजन करता है कि रोमन्स नेवर इन रियलिटी न्यू रिलीजन, their traditional gods were a pale imitation of Greek mythology, mere colorless ghosts silently accepted for the benefit of social convention. In no way those gods were allowed to interfere with real life. रोमन्स का मजहबी अकायद कोई ख़ास नहीं थे, वो सिर्फ ग्रीक मैथोलॉजी को कॉपी करते थे। उनके जो देवता थे वो बस बुतों की तरह थे, जिनका कोई इतना ख़ास प्रैक्टिकल लाइफ में रोल नहीं था। बट द फैक्ट रिमेन्स that all that is real today in Western ethics and outlooks on life is directly traceable to the old Roman civilization. क्योंकि ये इन्वर्टेड कामाज में है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्वर्टेड कामाज में जो लिखा है वो आप हूबहू कॉपी कर सकते हैं। बाकी वो मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं, बट इन्वर्टेड कामाज का मतलब ये है कि मैंने किताब से ये टेक्स्ट ऐसे ही उठाया है। आखिर कहता है कि जो भी वेस्टर्न एथिक्स हैं, आउटलुक ऑन लाइफ है,
इसकी जो बुनियाद है ये रोमन सिविलाइजेशन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन देता है चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ। वो ये कहता है, though Chinese civilization has shown powers of resistance through centuries, it cannot be compared with Islamic civilization. Chinese civilization ने रेजिस्टेंस दिखाई है सदियों तक, लेकिन इसका कंपैरिजन इस्लामिक सिविलाइजेशन से नहीं है। उसकी वजह बताता है इंटरेस्टिंग कि ये एक बरे आजम के एज पे वाक़या है और तकरीबन 50 साल पहले तक या मॉडर्न जापान के राइज होने तक ये किसी भी मुखालिफ ताकत की पहुंच में नहीं थी। ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये महफूज थी और अभी 50 साल पहले ही ये दुनिया पे ज़्यादा एक्सेसिबल हुई है या जापान के राइज तक ये हुई है। Until the rise of modern Japan, it was beyond the reach of any rebel power. Even the war with the Mongols at the time of Genghis Khan and his successors touched hardly more than the fringe of the Chinese Empire. मंगोल भी वहां तक नहीं पहुंचे, ये अनटच्ड रही, ज्यादातर अनटच ही रही। बट द इस्लामिक एम्पायर स्ट्रेच्ड ओवर 3 continents and was all the time surrounded by the inimical powers of strength and vitality. The Near and Middle East was the volcanic center of conflicting racial and cultural energies. इस्लामिक एम्पायर के साथ ऐसा केस नहीं था, क्योंकि इस्लामिक एम्पायर 3 बराज़मों पर फैली हुई थी और ये अपने मुखालिफ ताकतों के अंदर घिरी हुई थी। तो इसकी वाइटैलिटी सही चेक हुई और ये बिल्कुल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि इसने बहुत मुखालिफ ताकतों का मुकाबला किया। फिर वो बात करता है सुपीरियरिटी ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन क्यों। It was the religious teaching of the Quran that gave a solid foundation at the life example of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, that became a band steel around that grand social structure. The Roman Empire broke down so rapidly as it had no spiritual element to keep it together. Islamic civilization की खास बात ये है कि इसका स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है, कुरान की तालीमात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सी मिसालें हैं जिनके ऊपर इस्लाम का मजबूत बुनियाद खड़ी है। रोमन एम्पायर इसलिए जल्दी ब्रेक डाउन हो गई क्योंकि इसकी कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट, कोई रिलीजियस सिस्टम ऐसा नहीं था इसके पीछे। इस्लामिक वर्ल्ड के पीछे डिवाइन गाइडेंस का जो सिस्टम मौजूद है वो इसको सहारा दे के खड़ा है। अच्छा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अल्लाह ताला का कंसेप्ट क्या है? इट डज नॉट डिनाई गॉड but has no room and no use for him in its present intellectual system. खुदा को इनकार नहीं करते, लेकिन चूंकि उनके सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है, वो अपने काम में बिजी हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है अपनी मॉडर्न जो मटेरियल प्रोग्रेस है उससे, तो उनके लिए अल्लाह ताला का कंसेप्ट कोई खास मायने नहीं रखता। Thus, the modern Occidental is likely to attribute practical importance only to such ideas as lie within the scope of empiric sciences, or at least are expected to influence man's social relations in a tangible way. And as the question of the existence of God does not prima facie belongs to either of these two categories, the Western mind is on principle inclined to exclude God from the sphere of practical consideration. जो मॉडर्न वेस्टर्न माइंड है वो सिर्फ 2 चीज़ों को अहमियत देता है, वो आइडियाज़ जो कि साइंस से रिलेट करते हैं, फिजिकल साइंसेस से या साइंसेस की जितनी ब्रांचेज हैं, या आप कह दें कि
ऐसे तमाम एथिकल प्रिंसिपल जो इंसानों के आपस के ताल्लुकात को मैटर करते हैं, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, उन चीज़ों को वेस्टर्न माइंड अहमियत देता है, या उसको लगता है, ये भी एक बात है। उसको अगर लगता है कि इन चीज़ों की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, तो उनको वो अहमियत देते हैं। प्रिंसिपली वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो कंसेप्ट है वो उनकी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से ताल्लुक नहीं रखता, तो इसको वो एक्सक्लूड करते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उन चीज़ों को मानते हैं जिनका वजूद या जिनका सिस्टम में होना उनको ये लगता है कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनके लिए कोई फ़ायदा दे सकता है। लाइक एम्पिरिकल साइंसेज़ हैं, लाइक एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के तमाम एस्पेक्ट्स को ज़हन में रख के उनको फ़ॉलो करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये कांसेप्ट ऑफ गॉड उनसे रिलेट नहीं करता, तो उसको डिनाई कर देते हैं। उसको एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से। आगे एक और बड़ी खूबसूरत डिबेट छेड़ता है ऑथर। ये कहना कि मॉडर्न वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी की पैदावार है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ईसाइयत का मॉडर्न वेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। There can be no greater error than to consider Western civilization as an outcome of Christianity. वो ये कहता है कि practical achievements of modern Western civilization cannot be ascribed to the supposed efficacy of Christian teachings. It concentrated all its energies on the material and intellectual progress backed by scientific knowledge, and ignored the ethical and moral side that defied scientific proof. Christianity has contributed very little to the powerful scientific and material development in which the present civilization of the West excels all others. Indeed, those achievements emerged out of Europe's age-long intellectual fight against the Christian Church and its outlook on life. हालांकि जो ईसाइयत है उसके खिलाफ तो यूरोप के जो मटेरियल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका जो इंटेलिजेंसिया था, उनके जो साइंटिस्ट थे या उनके अहले इल्म लोग थे, उनकी तो वेस्ट की तो जंग रही है चर्च के साथ, और उस जंग के नतीजा में ही उन्होंने तरक्की की है। तो लिहाजा क्रिश्चियनिटी का कोई रोल नहीं है वेस्ट की मटेरियल प्रोग्रेस में। अच्छा, क्रिश्चियनिटी का जो कंसेप्ट है, इट रिपुडिएटेड सेक्स एज समथिंग बेस्ड ऑन द फॉल ऑफ आदम, peace be upon him, and Eve in the paradise, the original sin and its atonement through Christ's crucifixion. तो क्रिश्चियनिटी जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ नेचर के ऊपर थोड़ा बेस करती है। All this leads to an interpretation of human life not as a positive stage but almost as a necessary evil, कि इंसान की जो जिंदगी है ये उस गुनाह का नतीजा है। This belief system does not encourage energetic endeavors concerning worldly knowledge and the improvement of the conditions of earthly life. अब ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गया। ड्यूरिंग द मिडल एजेस व्हेन द चर्च वाज omnipresent there, Europe had no vitality and no place whatsoever in the realm of scientific research. कुरूने वस्ता में जब चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ताकत थी, तो उस टाइम यूरोप का कोई मकाम नहीं था साइंसी तरक्की में। तो ये वो आर्गूमेंट दे रहा है कि क्रिश्चियनिटी तरक्की की मुखालिफ रही है, और यूरोप ने जो तरक्की की है, वेस्ट ने जो तरक्की की है, वो चर्च से लड़ झगड़ के की है। The modern scientific age in which we are living at present was not originated in the cities of Christian Europe, but in such Islamic centers as Damascus, Baghdad, Cairo, Cordova, Nishapur and Samarkand. तो ये कहता है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक एज है, ये शुरू जो है ये इस्लामिक सिटीज से हुई है, सिटीज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो कि उस टाइम इल्म और तहजीब का गहवारा थे। इट वाज इस्लामिक सिविलाइजेशन दैट इन्फ्यूज्ड वेस्ट विद फ्रेश लाइफ एंड थ्रस्ट फॉर प्रोग्रेस। बहुत बड़ी बात कर दी
कि यूरोप को और वेस्ट को साइंसी तरक्की का रास्ता इस्लामिक सिविलाइजेशन ने दिखाया। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम नहीं दिखाया तो अब ये ज़वाल पजीर क्यों है इस्लामिक वर्ल्ड? इसका जवाब वो आगे देगा। 3 reasons why modern Western civilization is anti-religious। 3 वजूहात देता है कि क्यों ये एंटी रिलीजियस क्यों है। नंबर 1, हेरिटेज ऑफ रोमन सिविलाइजेशन विद इट्स अटरली मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। रोमन सिविलाइजेशन जो कि मटेरियलिस्टिक थी, तो उसी का ये हेरिटेज है। The revolt of human nature against the Christian world, contempt and the suppression of natural desires and legitimate endeavors of man। क्योंकि क्रिश्चियनिटी उधर थी, वेस्ट के अंदर थी, तो क्रिश्चियनिटी चूंकि आपकी लेजिटिमेट डिजायर्स को ही सप्रेस करती है, और आपके जो जायज दुनिया में आप तरक्की करनी है या आगे बढ़ना है या आपकी जो तरक्की करने के मौके हैं उनकी ही कंटेम्प्ट बेस करती है। तो फिर ये भी एक रिवोल्ट था ह्यूमन नेचर का अगेंस्ट द क्रिश्चियन वर्ल्ड। तीसरा, एंथ्रोपोमॉर्फिक कंसेप्शन ऑफ गॉड which resulted from the belief about the Jesus Christ as the son of God। तीसरा जो था वो अल्लाह ताला का वो तसव्वुर था इंसानी कि अगर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप हैं तो उनकी एक इंसानी शक्ल जहन में आती थी। तो ये 3 वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं, आथर ने ये कहा है कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो एंटी रिलीजियस हो गई। Worship of material progress is the new religion whose temples are the gigantic factories, cinemas, chemical laboratories, dancing halls, hydroelectric works, and its priests are bankers, engineers, film stars, and captains of industry। यूरोप में या वेस्ट में एक नया मजहब इजाद हुआ वक्त के साथ साथ, जिसका टेम्पल जो है वो फैक्ट्रीज हैं, सिनेमाज हैं, केमिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, डांसिंग हॉल्स हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, और इसके जो पादरी हैं वो बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। मोरालिटी इज कन्फाइंड टू द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी अलोन। और एथिक्स का उतना ताल्लुक है वहां तक महदूद कर दिया गया जहां तक उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। अच्छा, वेस्ट के अंदर जो सेक्सुअल फिडेलिटी है उसका क्या कंसेप्ट है? Sexual fidelity and discipline are quickly becoming a thing of the past in the modern West because they were mainly motivated by ethics, and ethical considerations have no tangible immediate influence on the material well-being of society। चूंकि सेक्सुअल डिसिप्लिन का ताल्लुक मटेरियल वेलबीइंग से डायरेक्टली इस्टेब्लिश नहीं है, एक आज़ाद ख्याल साइंटिफिक माइंड में ये नहीं इस्टेब्लिश होता, लिहाजा वो इसको भी कहते हैं कि ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। कंसेंटेड अगर आप मखलूत मेल मिलाप रखते हैं तो इसको वो कोई ख़ास अहमियत नहीं देते क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट बेयरिंग नहीं है ऑन द मटेरियल वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी एज पर देयर माइंडसेट। In Islam, the first and foremost objective is the moral progress of man, and therefore ethical consideration overrule the purely utilitarian ones। इस्लाम का कंसेप्ट डिफरेंट है। इस्लाम ये कहता है कि मॉरल प्रोग्रेस ऑफ मैन वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या मुसलमानों को वेस्ट को इमिटेट करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए? तो यहाँ पे राइटर क्लैरिफाई करता है कि दैट इफ मुस्लिम्स इमिटेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इट्स स्पिरिट एंड इट्स मोड ऑफ लाइफ, इट इज लाइक डीलिंग फैटल ब्लो टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम एज ए theocratic polity and a practical religion। अगर ऐसा करेंगे मुसलमान, कॉपी करेंगे, तो ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है इस्लाम की एज ए पॉलिटिकल सिस्टम और एज ए प्रैक्टिकल रिलीजन वो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये कहता है कि इन्वर्टेड कामाज में कॉपी है, The imitation individually and socially of the Western mode of life of Muslims is undoubtedly the greatest danger for the existence or rather the revival of Islamic civilization।
यहाँ पे आथर जी कहते हैं अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन रिवाइव नहीं हो सकेगी। मुस्लिम being ignorant of the true teachings of Islam adopted the social and economic rules of the West। मुसलमानों ने अपनी जहालत की वजह से, जो कि इस्लाम की टीचिंग्स के बारे में थी, वो नहीं जानते इस्लाम की असल टीचिंग्स को, उन्होंने वेस्ट के सोशल एंड इकोनॉमिक रूल्स अपना लिए। दे मिस्टेकनली believed that Islamic system of society and economics is not according to the requirements of the progress and should therefore be modified on Western lines. They considering the teachings of theologians as Islam, they considered the teachings of theologians as Islam, which was a great misunderstanding. Quran and Sunnah is the true Islam. यहाँ पे आथर ने प्रिंस सैयद हलीम पाशा को कोट किया, जो उनकी मशहूर किताब है इस्लाम लाशमक। इस किताब में प्रिंस लिखते हैं, साबित किया प्रिंस ने कि इस्लामिक शरिया इज नॉट द हिंड्रेंस टू मॉडर्न प्रोग्रेस, कि इस्लामिक शरिया जो है वो मॉडर्न प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं है। फिर जो आथर है वो इमोशनल बायस का जिक्र करता है कि वेस्ट क्यों इस्लाम की तरफ इमोशनली बायस्ड है, बाकी रिलीजन्स की तरफ उस तरह इमोशनली बायस्ड नहीं है। इसका वो जिक्र करता है, this bias can be traced back to the first great clash between United Europe and Islam, the Crusades. The Crusades decided the European attitude toward Islam for many centuries to come. Without indulging in undue exaggeration, we can say that modern Europe was born out of the spirit of the Crusades. तो आथर ये कहता है कि जो यूरोप का, वेस्ट का बायस है इस्लाम की तरफ, इसकी जो बुनियाद है वो सलेबी जंगें हैं, जिसका काफ़ी असर लिया यूरोप ने। It was the hatred of Islam that stood as godfather behind the new creation। अच्छा, इस्लाम की जो नफरत थी ये यूरोप की यूनिफिकेशन का भी एक सोर्स रही। At that time, the ridiculous notion of Islam as a religion of crude, crude sensualism and brutal violence of an observance of formalities instead of a purification of the earth entered the mind of Europe and remained there। यूरोप ये समझता है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसुअलिज्म है, ब्रूटल वायलेंस का है, और ये फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करते हैं, नमाज पढ़ ली, हज फॉर्मेलिटी। तो इसका ये कंसेप्ट नहीं है कि इससे कोई प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट होती है। यूरोप ये समझता है इस्लाम के बारे में। ये मोहम्मद असद साहब के वर्ड्स हैं। आगे ये कहता है, though the civilization of Islam and of the West are entirely different in their spiritual foundations and their social aims, they surely should be able to tolerate one another and to live side by side in a friendly intercourse। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट इज पॉसिबल, और ऐसा होना भी चाहिए। कुरान पाक की बहुत सारी आयात हैं एटीट्यूड ऑफ इस्लाम टुवर्ड्स लर्निंग, और वो आयात इस तरह की हैं कि आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, लाइक यू मे बिकम वाइज एंड दैट यू मे थिंक दैट यू मे नो एंड ही टॉट आदम ऑल दी नेम्स। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। नामों से मुराद जो है वो इंसान तमाम इल्म था, वो बेसिकली इल्म की तरफ इशारा था। सूरह बकरा आयत नंबर 31, सूरह बकरा आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहता है, he taught Adam the names of all things, then he presented them to the angels and said, tell me the names of these if what you say is true। तो if anybody, तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, if anybody goes on his way in search of knowledge, Allah will make easy for him the way to paradise।
सही मुस्लिम की हदीस है कि अगर कोई इंसान जाएगा इल्म के रास्ते पे तो अल्लाह ताला उसका जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। फिर एक हदीस पाक है तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा की अंदर कोटेड है कि एक जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी एक आबिद, एक इबादत गुज़ार के ऊपर जो सुपीरियरिटी है वो ऐसे ही है जैसे कि चाँद की सितारों के ऊपर। Islam was never a barrier to progress and science. It appreciates the intellectual activities of man to such a degree as to place him above the angels. No other religion went over so far in asserting the dominance of reason and consequently of learning above all other manifestations of life. इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी लर्निंग को, सीखने को, आगे बढ़ने को, प्रोग्रेस को, मटेरियल प्रोग्रेस को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। नॉलेज को, लर्निंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इस्लाम ने। ये गलत कंसेप्ट है। ये भी कंसेप्ट है मुसलमानों में कि इस्लाम ने सिर्फ दीनी इल्म पे जोर दिया है। इस्लाम ने दीनी और दुनियावी दोनों उलूम की हसूल पे जोर दिया है। The writer asserts that the Muslims should have modern learning, but they must not wish to exchange the spiritual civilization of Islam for the materialistic experiments of the West. बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर तबादला करना पड़े तो मुसलमानों को अपना स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए इन रिटर्न फॉर मटेरियल एक्सपेरिमेंट्स। मटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रेस है वो नहीं लेनी चाहिए। दोनों, पहली बात तो ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुसलमानों के पास जो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है ये बहुत कीमती है एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स। कॉजेज ऑफ आवर प्रेजेंट डिके, अब मुस्लिम वर्ल्ड के डिके की तरफ वो आ रहा है। We have no right in our present misery to boast of past glories, but we must realize that it was the negligence of Muslim and not deficiency in the Islamic teaching which caused our present decay. मुसन्निफ ये कहता है कि हमें कोई हक नहीं कि हम अपनी माजी की अज़मतों के ऊपर बात करें, लेकिन हमें ये जानना होगा कि मुसलमानों की जो गफलत है वही सबसे बड़ी वजह है। इस्लामिक सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं था। The Muslim did not follow that principle of Islam which imposes the duty of learning and knowledge on every Muslim. The writer's proposals regarding curriculum, वो ये कहता है निसाब के बारे में, of all intellectual achievements of the West, only natural sciences and mathematics should be taught in Muslim schools, and the tuition of European philosophy, literature and history should lose the position of primacy which today it holds in the curriculum. बहुत खूबसूरत बात कि हमें अपने निज़ाम तालीम में, अपने निसाब में सिर्फ नेचुरल साइंसेस को और मैथमेटिक्स को शामिल करना चाहिए और मुसलमान स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जो कि वेस्ट से आई हैं। हाँ, यूरोपियन फ़िलॉसफ़ी, लिटरेचर और हिस्ट्री को इतना प्राइमेसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा यूथ है, हमारा यूथ वो वेस्ट से मरूब हो जाता है। इस्लामिक लिटरेचर शुड रिप्लेस द वेस्टर्न लिटरेचर। This is how we can prevent our youth from imitating the Western civilization. Islam abolished racial hatred and opened the way for human brotherhood and equality. No classes in Islam, racial and national antagonisms in Western civilization full of class struggle and social hatred. यहाँ पे एक और कंपैरिजन कि इस्लाम में कोई क्लास सिस्टम नहीं है जबकि वेस्ट में ऐसा है। क्लासेस हैं, वहाँ पे स्ट्रगल भी है, सोशल हैट्रेड भी है। यहाँ पे जो ऑथर एक नसीहत करता है, इन ऑर्डर टू अचीव द रीजनरेशन ऑफ इस्लाम द मुस्लिम्स मस्ट फ्री देमसेल्व्स एंटायरली फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अपॉलजी फॉर द रिलीजन। दे शुड नॉट बी अपॉलोजेटिक। A Muslim should be proud of his religion. The world of Islam should not imitate the Western civilization, otherwise it will lose its cultural and spiritual ground. Muslims at the crossroad. Islam is not only a belief of heart, but a program of individual and social life. It can be destroyed by being assimilated to another civilization with different moral foundations. जिस
सिविलाइजेशन की बुनियादें ही डिफरेंट हैं, आप उसके साथ सिमुलेट नहीं कर सकते, उसके साथ उसको कॉपी करेंगे तो आप अपनी शनाख्त खो देंगे। Muslims are at the crossroad. One road is leading to the Western civilization and the other goes to the reality of Islam. They should choose the latter one. मुसलमान एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, एक चौराहे पे खड़े हैं, एक रास्ता जा रहा है वेस्ट की तरफ और दूसरा जा रहा है इस्लाम की बुनियाद की तरफ, तो आप रियलिटी ऑफ इस्लाम की तरफ जाएं। अब आथर एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करता है, सुन्ना की क्या अहमियत है। The author prescribes that the natural diet for the sick body of the Muslim world is the Sunnah of our Holy Prophet, peace be upon him. Observance of the Sunnah is synonymous with Islamic existence and progress. Neglect of the Sunnah is synonymous with decomposition and decay of Islam. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अटैच करता है और वाकई है भी ऐसा ही। सुन्ना की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान इस्लाम दो चीज़ों के ऊपर खड़ा है, एक तो कुरान और दूसरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी लाइफ एग्जांपल, उनकी सेइंग, उनकी डूइंग्स। The Sunnah was the iron framework of the House of Islam, and if you remove the framework of a building, you be surprised if it breaks down like a house of cards. ये उसके inverted commas हैं। The word Sunnah in its widest meaning is the example of Holy Prophet which he set before us in his actions and sayings. His life was a living illustration of the Holy Quran. We can do no greater justice to the Holy Quran than by following him who was the means of its revelation. जिस हस्ती पे कुरान पाक नाजिल हुआ, उस हस्ती को फॉलो करना ही कुरान पाक के साथ इंसाफ है, इस्लाम के साथ इंसाफ है। Our reasoning tells us that there could not possibly be a better interpreter of the Quranic teachings than he through whom they were revealed to humanity. जिस पाक हस्ती पे कुरान पाक नाजिल हुआ, उससे बेहतर तशरीह करने वाला कोई और नहीं हो सकता कुरान पाक की। उस हस्ती ने कुरान पाक की तशरीह कैसे की? अपनी अहादीस के ज़रिए की, अपनी बातों के ज़रिए की और अपने अमल से की। तो हमारे ऊपर ये लाज़मी है कि हम कुरान पाक की तशरीह सुन्नत की रोशनी में करें। ये है आथर का पॉइंट। Whatever the Prophet enjoins you, accept, and whatever he forbids you, avoid. सूरह हशर आयत नंबर 7। जो रसूल तुम्हें देता है ले लें और जिससे वो मना करते हैं वो छोड़ दें। सूरह अन-निसा आयत नंबर 65। But no, by your Lord, they will never be true believers until they accept you, O Prophet, as the judge in their disputes and find no resistance within themselves against your decision and submit wholeheartedly. अल्लाह ताला के नबी को आप अपने तमाम डिस्प्यूट्स में जज बनाएं और उनके फैसलों के खिलाफ कोई अपने जहन में बदली ना लाएं, उनके फैसलों को एक्सेप्ट करने में। Say, O Prophet, if you sincerely love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive your sins, for Allah is all forgiving, most merciful. सूरह अल इमरान आयत नंबर 33, आयत नंबर 31। ऐ पैगंबर कह दो कि अगर आप अल्लाह से प्यार करते हैं तो मुझे फॉलो करें। अल्लाह ताला आपसे प्यार करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ऐ नबी आप ये कह दें कि आप मेरी इताअत करें। इताअत रसूल की अहमियत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मुसलमान सारे मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनकी बातों पे अमल किया जाए। उसकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनकी तरह का लाइफ़स्टाइल अपनाया जाए। इबादत में भी और मुआमलात में भी। हमारा मसला ये है कि हम मुआमलात में इताअत रसूल और इताअत अल्लाह नहीं करते। Say, O Prophet, obey Allah and His Messenger. If they still turn away, then truly Allah does not like the disbelievers. Surah Al Imran, ayat number 32. He does not speak of his own desire. Surah Najm, ayat number 3. कि अल्लाह का रसूल अल्लाह की मर्जी के सिवा कोई बात नहीं करता। जो कहता है वो अल्लाह की मर्जी से कहता है। The Sunnah of the Prophet is therefore next to the Quran, the second source of Islamic law of social and personal behavior. In fact, we must regard the Sunnah as the only valid explanation of the Quranic teachings.
the only means to avoid dissension concerning their interpretation and adaptation to practical use. इस्लाम के जो दो बुनियादी सोर्सेज हैं, एक तो कुरान है और फिर दूसरा जो सोर्स है वो सुन्ना है ऑफ द प्रॉफिट, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अच्छा, सुन्ना जो है वो कुरान पाक की ओनली वैलिड एक्सप्लेनेशन है जिसके ज़रिए हम कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और उस रोशनी में करेंगे, सुन्ना की रोशनी में करेंगे तो हमारे दरमियान फिर इख्तिलाफ नहीं होगा, और फिर हम जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली होगी। अब मुसलमानों में एक और ये भी एक कंसेप्ट है, एक गलतफहमी है कि ये बात फैलाई गई जानबूझ के कि अहादीस जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। उनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन किया गया तो मोहम्मद असद ने अपनी किताब में अहादीस की ऑथेंटिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से साबित किया है। अहादीस क्या है? दीज आर द ट्रेडिशन ऑफ द सेइंग्स एंड एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट रिपोर्टेड एंड ट्रांसमिटेड बाय हिज कंपेनियंस एंड क्रिटिकली कलेक्टेड इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ इस्लाम। तो आथर ये एस्टेब्लिश करता है कि अहादीस ऑथेंटिक हैं, जो अवेलेबल है ऑथेंटिक है। The compilers of the early hadith collections, and particularly the Imam Bukhari and Muslim, have done whatever was humanly possible to put the authenticity of every tradition to a far rigorous test, a far more rigorous test than European historians usually apply to any historical document. जो ये कंपाइलर्स थे, मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और मुस्लिम, इन्होंने सब कुछ वो किया जो इंसानी तौर पे मुमकिन था। हर हदीस पाक को, हर रवायत को इन्होंने बड़ा रिगरसली टेस्ट किया, उनकी ऑथेंटिसिटी को, और ये यूरोपियन हिस्टोरियन से ज़्यादा रिगरस था जो कि वो किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग अल्लाह के नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हों, वो अल्लाह के नबी से झूठी बातें मंसूब करेंगे? क्या ये बात सोची जा सकती है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो मेरे साथ झूठ बांधेगा, मुझसे झूठ मंसूब करेगा, उसका ठिकाना जहन्नुम है, वो आग में जलेगा। और ये हदीस इन तमाम मुहद्दिसीन ने कोट की हुई है। सही अल बुखारी में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, जामी तिर्मिज़ी में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, मसनद इब्न हंबल में भी है। ये इन बुजुर्ग हस्तियों ने, इन मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में कोट की है इस हदीस को। इसका मतलब ये है कि वो ये जानते हैं और वो हैं भी ईमान वाले, तो क्यों कोई नऊज़ बिल्लाह झूठी हदीस जो है वो इसमें शामिल करेंगे, झूठी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करेंगे। फिर एक और बात, एक और आर्गुमेंट आखिर का ये है कि जब कोई झूठी बात मंसूब करता है तो उसके लिए कोई फ़ायदा होता है, कोई माली फ़ायदा होता है, कोई उसका पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या मिलना था? कोई ऐसी बात मंसूब करके क्या फ़ायदा इन्होंने लेना था? ये जो इमाम बुखारी हैं और इमाम मुस्लिम हैं, इन्होंने ऐसी तमाम रवायात को निकाल दिया जिनके अंदर ये गुमान था कि ये किसी मखसूस पार्टी के मफाद में जाती हैं और किसी ख़ास शख्सियत के बारे में भी हैं। उन रवायात को निकाल दिया अपनी किताबों में से, अपनी रवायात में से। और ये इसलिए एहतियात बरती गई कि कोई ऐसा पॉसिबिलिटी ना रहे कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई डाउट हो और जिसके बारे में कोई शक हो, उनको भी इन्होंने निकाल दिया। हर उस रवायत को निकाला जो इनको लगा कि शायद ये किसी के मफाद में हो सकती है, और या इसको कोई चांस हो सकता है कि किसी ने इसको बना लिया हो, तो उन्होंने ऐसी तमाम रवायात को खुद ही निकाल दिया। What remained was fairly beyond the suspicion of giving personal advantages to anyone। जो अहादीस की बाकी है, जो अहादीस कोट हुई, जो इन मौजूद है ख़ास तौर पे इन 2 किताबों में, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में, वही बाकी हैं जिनके अंदर किसी के लिए कोई ख़ास फ़ायदा, किसी ख़ास इंडिविजुअल के लिए, किसी ख़ास ग्रुप के लिए कोई फ़ायदा नहीं था। तो एक चीज़ जब किसी के फ़ायदे में नहीं है तो कोई उसमें
कैसे हम कह सकते हैं कि किसी के फायदे के लिए बनाई गई है? जो कोई उसमें कंकॉक्शन क्यों करेगा, उसको फाल्सिफाई क्यों करेगा? The companions who were immediately associated with the Prophet preserved a hadith in their memory at the cost of great personal discomforts. There were two groups of companions who alternatively did this duty so that no doing or saying of the Prophet should escape their notice. जो सहाबा कराम मामूर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डूइंग और सेइंग को नोट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मेमोरी से ये बातें महफूज करते थे। दो ग्रुप थे, एक ग्रुप अपने काम पे जाता था, दूसरा ग्रुप मौजूद रहता था। हर टाइम एक ग्रुप ऐसा होता था जो कि आस-पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद रहता था, ताकि उनकी बातों को और उनके एक्शन को नोट करे और उनको महफूज करे। और एक बहुत बड़ी आर्गुमेंट है, मोहम्मद हसन ने दी है, अगर ये मुमकिन है सैकड़ों सहाबा के लिए कि वो कुरान पाक की स्पेलिंग और वर्डिंग को महफूज कर लें, किसी भी बात को भुलाए बगैर, विदाउट स्किपिंग एनी माइन्यूट डिटेल्स, तो उनके लिए ये मुमकिन क्यों नहीं है? बल्कि ये उनके लिए इक्वली पॉसिबल है कि वो अहादीस को भी वर्ड बाय वर्ड प्रिजर्व कर लें। ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि जिन सहाबाए किराम ने कुरान पाक को महफूज किया, उसकी कंपाइलेशन में हेल्प की, उसको महफूज किया, वही सहाबाए किराम ने अहादीस को भी महफूज किया, तो ऑथेंटिसिटी ऑफ अहादीस जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। The compilers ascribe perfect authenticity to those ahadith only which are reported in the same form through different independent chains of narrators. अहादीस की कंपाइलेशन के बारे में एक बात ज़हन में रहे कि जो कंपाइलर्स थे, जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने खुद एक बहुत रिगरस टेस्ट लगाया और उन्हीं अहादीस को ही कोट किया है अपनी किताबों में, जो कि एक ही तरह से रिपोर्ट हुई थ्रू डिफरेंट इंडिपेंडेंट चेन्स ऑफ नरेटर्स। In order to be a Sahih hadith, a hadith must be corroborated at every stage of transmission by the independent evidence of at least two or possibly more transmitters. Until now, no critic has been able to prove in a systematic way that the body of hadith regarded as authentic according to the test standards of the foremost tradition is inaccurate. अभी तक कोई ऐसा क्रिटिक नहीं आया जो साबित कर पाया हो कि जो हदीसें कंपाइल हुई हैं, ख़ास तौर पे इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी में, वो ऑथेंटिक नहीं हैं। ये कोई भी साबित नहीं कर सका, लिहाजा हम कह सकते हैं और यकीन से कह सकते हैं कि अहादीस जो मौजूद हैं, ख़ास तौर पे इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी, इनका चूँकि ज़िक्र यहाँ पे आया है, तो इनकी अहादीस जो है वो ऑथेंटिक हैं। और ये जो उन्होंने कोट किया, जो कंपाइल की हैं, वो ऑथेंटिक हैं। अच्छा, एक और खूबसूरत आर्गुमेंट ये देता है, अगर ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस is not established in the mind of the Muslims, how can they bring their present degenerate ways of living and thinking into line with the true spirit of Islam as reflected in the Sunnah of our Prophet? मुसन्निफ ये कहता है कि अगर हम अहदीस की ऑथेंटिसिटी को ही मशकूक बना देते हैं, तो उससे फिर हम कैसे अपनी लाइफ को सुन्नत के मुताबिक कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि हमने सुन्नत के साथ अपना राब्ता जो है वो कमज़ोर कर लिया है। These ahadith help in the correct interpretation of the Quranic teachings. यही हदीसें ही तो बुनियाद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है। एक आपकी सेइंग्स और डूइंग्स। ये ट्रेडिशंस हैं आपसे जो मंसूब हैं और जिनको कंपाइलर्स ने कंपाइल किया, मुहद्दिसीन ने कंपाइल किया, तो इनकी रोशनी में हमने कुरान पाक को इंटरप्रेट करना है। Whatever its teachings are recognized as really pronounced by the Wherever its teachings are recognized as really pronounced by the Quran or the Prophet, we must accept them in their completeness, otherwise they will lose their value. हमने कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उनकी मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि हम कुछ को एक्सेप्ट कर लें और कुछ को इग्नोर कर दें। तो अगर हम उसको पार्टली एक्सेप्ट करेंगे तो ये उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आपने होल हार्टेडली होली एक्सेप्ट करना है, कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। इस्लाम का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? इट वाज कंप्लीट रिकंसिलिएशन बिटवीन द मोरल एंड द मटेरियल साइड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फॉर दिस फीचर इस्लाम गॉट इमेंस एक्सेप्टेंस ग्लोबली। इस्लाम की खूबसूरती ये है
कि ये दुनियावी ज़िंदगी को और उखरवी ज़िंदगी को रिकंसाइल करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनाता कि आप दुनिया की ज़िंदगी ले लें, आखिरत की छोड़ दें, या आखिरत की ले लें, दुनिया की छोड़ दें। वो ये कहता है कि आपकी जो अखलाकी और मादी साइड है, मॉरल एंड मटेरियल साइड, दोनों को आप कवर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साइड को कवर कर सकते हैं। आपने अगर इस्लाम के एम्बिट में आए हैं, तो आपके लिए दुनिया और उसके मामलात छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्लाम एनकरेज करता है कि आप दुनियावी तरक्की भी हासिल करें, दुनियावी तौर पे भी आप प्रोग्रेस करें और अपने ईमान को सलामत रखते हुए आप अपने अगले जहान की, लाइफ हेयर आफ्टर की भी तैयारी करें। It brought to mankind the new message that the earth need not be despised in order that heaven be gained. जन्नत के हसूल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया की ज़िंदगी से नफ़रत करें। आप इस ज़िंदगी से प्यार कर सकते हैं, इस ज़िंदगी को पा सकते हैं, जो हिस्सा अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है इस दुनिया में, उसको ज़रूर हासिल करें, लेकिन साथ-साथ अपने ईमान को सलामत रख के, तकवा के साथ अपने आखिरत की तैयारी भी करें, और उस तैयारी के लिए आपको दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। But surely and certainly, no unbiased person would contend that there is anything in Islam contrary to reason. No doubt there are things in it beyond the limits of human understanding, but nothing which is contrary to it. इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लॉजिक या रीज़न के खिलाफ हो। हाँ, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि आपकी समझ में ना आए। 3 वजूहात बताता है मुसन्निफ़ कि जिसकी वजह से सुन्ना का इंस्टीट्यूशन के फ़वाइद हैं, सुन्ना का इंस्टीट्यूशन है, उसकी 3 वजूहात हैं सुन्ना के लिए। पहला इसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, ट्रेनिंग ऑफ मैन इन ए मेथोडिकल वे टू लिव परमानेंटली इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। दूसरा है सोशल इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी, और तीसरा है नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट। ये तीसरा मैंने आगे लिखा हुआ है, नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इट। 3 वजूहात हैं। तो पहली बात हम करते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ मैन, सुन्ना को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? सुनना क्यों ज़रूरी है? पहली वजह है ट्रेनिंग ऑफ मैन, कि इंसान की ज़िंदगी से जो हैज़ार्ड एक्शंस हैं और हैबिट्स हैं, वो तकरीबन मिनिमम हो जाती हैं। इंसान जो है वो परमानेंटली एक ऐसे स्टेट में रहता है, इन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। तीसरी चीज़ ये वो ट्रेन होता है इंसान कि वो अनइम्पोर्टेंट एक्शंस और अनइम्पोर्टेंट हैबिट्स को छोड़ देता है। अगली चीज़ ये है कि वो उसका जो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सेल्स हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो उनमें फ़र्क नहीं करता। वो कहता है कि मैंने मादी तौर पे भी तरक्की करनी है और स्पिरिचुअली भी आगे जाना है। क्योंकि मिसाल देता हूँ इस्लाम में कि ज़कात का हुक्म है, तो ज़कात अमीर आदमी देगा ना, जो पैसे कमाएगा वही ज़कात दे सकता है। तो इस्लाम के बहुत सारे फ़राइज़ ऐसे हैं जो कि आपकी माली तरक्की से मंसूब हैं। बहुत सारी चीज़ों का हुक्म है जो कि एक मालदार आदमी कर सकता है। तो हज जो है, हज एक गरीब जिसके पास पैसे नहीं, वो तो नहीं कर पाएगा, साफ ज़ाहिर है। तो दुनियावी तरक्की भी ज़रूरी है ताकि आप इस्लाम के फ़रीज़े भी निभा सकें, जैसा कि ज़कात है, जैसा कि दूसरों की मदद है। तो इस्लाम बिल्कुल भी मादी या माली तरक्की का मुखालिफ नहीं है। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम लेज़ीनेस ऑफ माइंड। आउटकम ऑफ फॉलोइंग सुन्नाह इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। आप जब सुन्नाह को फ़ॉलो करें, तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आप उस हस्ती को फ़ॉलो कर रहे हैं जिसके ऊपर डिवाइन गाइडेंस नाज़िल हुई थी, और आप उसके स्पिरिट को फ़ॉलो करें। The moment the practice of the Sunnah degenerates into mechanical routine, it entirely loses its educative value. Such has been the case with the Muslims during the last centuries. सुन्ना को फॉलो करते हुए ज़हन में रहे कि आपने सुन्ना को सिर्फ इबादत में फॉलो नहीं करना, बल्कि इबादत के साथ-साथ अपने मामलात में भी फॉलो करें। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करें और उनसे पॉइंट निकालें कि कहाँ-कहाँ हमने इसको फॉलो करना है, बल्कि हर जगह पे फॉलो होना है। तो आपने उनकी लाइफ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है। ऐसा नहीं है कि आपने रूटीन बना ली, आप सिर्फ़ इबादत की हद तक उसको रखें। इबादत भी ज़रूरी हैं, साथ-साथ मामलात में भी उसको लेके आएँ।
The author blames Sufism as it neutralized the active vigor and utility of Sunnah. यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा पॉइंट आथर ने दिया है जो कि बहुत सारे मेरे सुनने वाले शायद इसको साथ अग्री ना करें, लेकिन आथर का ये जो पॉइंट है ना, ये इसी तरफ इशारा है कि आथर ने यहाँ पे सूफीज़्म को किसी हद तक ब्लेम किया है कि इसने सूफीज़्म ने क्या किया, सुन्ना की एक्टिव विगर और यूटिलिटी को न्यूट्रलाइज किया। कैसे कि सूफीज़्म ने सुन्नत के साथ मोहब्बत का तो वो कहा, मोहब्बत का भी दर्स दिया, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलिटी थी उसको इग्नोर कर दिया। तो ये उसको ब्लेम करता है सूफीज़्म को आथर। इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये आथर के व्यूज़ हैं और उसके लिए वो रीज़न भी देता है। वो आप किताब, अगर आप इसको इस टॉपिक इस एस्पेक्ट को पढ़ना चाहें तो बल्कि मैं, अगर आप कहेंगे तो उसका वो स्क्रीनशॉट भी इसमें डाल दूँगा, जो पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट है। The author reiterates that despite the failure of the Muslims to benefit from the teachings of the Holy Quran and their interpretation through the Sunnah, the basic spirit of these teachings has remained intact and can be put into practice once again. दूसरा जो एस्पेक्ट है सुन्नत का वो है इसकी सोशल इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। सुन्ना promotes identical habits among members of society, similar customary practices. Society is regulated by the laws of Allah Almighty, interpreted through the sayings and actions of the Prophet. All questions regarding formation, conditions, and organization of society are settled by the divine laws. यहाँ पे आखिर ये कहता है कि सुन्नत की जो सोशल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब सारे इंसान एक जैसी आदत को फॉलो करते हैं माशरे में, तो उनके दरमियान इख्तलाफात कम हो जाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा हो जाता है, उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस एक जैसी हो जाती हैं। फिर वो आगे ये कहता है कि सोसाइटी की बारे में जो बेसिक क्वेश्चन जो एक वेस्टर्न माइंड में आते हैं वो इस्लाम ने पहले ही दे दिए हैं। इस्लाम ने उन तमाम सवालात के जवाब आंसर किए हुए हैं जो कि एक ऐसे लॉजिकल माइंड में आएंगे जो दीन की तालीमात से आगाह नहीं है। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो कि सोसाइटी की फॉर्मेशन, कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होते हैं, ये अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान को अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके जवाब मौजूद हैं। नो नीड फॉर सोशल रिफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ ऑलमाइटी इंटरप्रेटेड थ्रू द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट। आपको सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। याथर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला के कानून के होते हुए। अल्लाह ताला का कानून इटसेल्फ रिफॉर्मेटरी लॉज हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं, इन्हीं को फॉलो कर लें, आपकी सोसाइटी रिफॉर्म है। Islamic society may use its energies on real, material, spiritual and intellectual endeavors. तो आखिर ये कहता है कि इस्लामी माशरे को इन बुनियादी सवालात से आगे निकल के, क्योंकि ये तो सवाल ऑलरेडी मौजूद हैं दीन के अंदर, इनके जवाबात, इनसे आगे निकल के अपनी एनर्जी जो है वो रियल, मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एंडीवर्स पे खर्च करनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट कि सुन्ना को फॉलो करना क्यों जरूरी है। व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग सुन्ना, ऑल डिटेल्स ऑफ आवर डेली लाइफ आर बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स set by the prophet in the form of sayings and doings. जो हम सुन्ना को फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तमाम रूटीन, तमाम डिटेल्स वो उन एग्जाम्पल पे बेस करती हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में हैं और उनकी एक्शन के बारे में हैं। We take his life as the guide toward the perfect life. We regard him as the supreme messenger of God, always acting under divine supervision. We regard him as mercy to the worlds. तो ये है नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग सुन्ना। इस्लाम इज ए कंप्लीट पैकेज। अल्लाह ताला ने ये दिया निज़ाम, और अल्लाह ताला ने इसलिए इस्लाम को दिया हमें कि हमारे तमाम मसलों का हल इसमें है। ये इंसान को जितने भी मसाइल हैं उसका अकलौता हल है, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। Islam is not the alternative solution, it is the only solution of man's problems.
ये हमारी डिस्क्रेशन नहीं है कि हम इस्लाम के कुछ हिस्सों को, कुछ तालीमात को ले लें, एक्सेप्ट कर लें, बाकियों को इग्नोर कर दें। ये हमारी डिस्क्रेशन नहीं, हमने लेना है तो कंप्लीट लेना है, और हमें लेना ही कंप्लीट है। We should accept Islamic teachings, Quran and Sunnah, wholly and completely. We regard Islam as superior to all the religious systems because it embraces life in its totality. It takes world and hereafter, soul and body, individual and society equally into consideration. Islam is a complete package. It does not impose the impossible upon us, but directs us how to make the best use of our possibilities and so reach a higher plane of reality where there is no cleavage and no antagonism between idea and action. Islam इंडिविजुअल प्रोग्रेस के भी हक में है और प्रमोट करता है, और सोशल प्रोग्रेस को भी इंकरेज करता है। कंक्लूड करते हैं इस बुक की समरी को, इस बुक को। There is no benefit for the Muslim world to be under the influence of the Western civilization. मुस्लिम वर्ल्ड को कुछ फायदा नहीं हासिल होगा अगर आप वेस्ट को कॉपी करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये आथर कह रहा है, जो खुद वेस्टर्न है, वेस्ट को स्टडी करके आया, वेस्ट के अंदर से है, मुसलमान हुआ, उसने ये कहा कि मुस्लिम दुनिया को वेस्ट को कॉपी कर कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कैन वी रिस्टोर द एनर्जी एंड विगर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम? Islam is a law decreed by God Almighty to be followed by all times and everywhere. Islam is not a mere culture among many others, not a mere outcome of human thoughts and endeavors. It is for this reason that Islamic culture, truly based on the teaching of Islam, cannot be chained to the lapse of time, and it cannot be limited to a particular area and geography. Islam जो है ये किसी खास टाइम के लिए नहीं है और किसी खास एरिया के लिए नहीं है। There is no sign to indicate that the mankind has outgrown Islam. It has not been able to produce, mankind has not been able to produce a better system of ethics than that expressed in Islam. Unique feature of Islam as a system, एक तो सबसे पहला फीचर ये है कि ह्यूमन ब्रदरहुड का जो आइडिया है ऑन प्रैक्टिकल फुटिंग, और दूसरा इस्लाम ने जो कंसेप्ट दिया है बेस्ड ऑन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देयर फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, ये इस्लाम की यूनिक फीचर्स हैं। And Islam, being the divine guidance, is perfect in itself, no reform required in it. However, we need to reform our attitude towards religion. We should eliminate laziness of mind and body and our own defects. We should not be apologetic for Islam. We should follow Sunnah of the Holy Prophet consciously. Sunnah means no more and no less than the teaching of Islam translated into practice. Verily, in the apostle of God, you have the best example for everyone who looks forward towards God and the day of judgment. तो ये था हमारा आज का इस किताब का समरी। होपफुली ये आपको पसंद आएगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।